کہ ایک اسپیسیفک ایج کے بعد کہ ریڈ کپڑے کیوں پہن لیے, فلانا کیوں کر لیا, یہ مطلب میں بھی سن رہی ہوتی ہوں کہ ہے. مجھے تو آج تک یہ چیز ہی نہیں سمجھ آئی کہ ایج سے کلرز کا کیا تعلق ہے. ریڈ لپسٹک کیوں لگا لی ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے ایسی کوئی چیز سنی اور آپ نے فائٹ اس سے کیسے کیا, یہ بتائیں فائٹ کیسے کیا. نہیں فائٹ کیا کرنا ہے, جسٹ اگنور. میری زندگی میں ڈیسائیڈ کر رہی ہوں نا who the hell is someone else. اور آئی تھنک ہم چونکہ شوبز میں ہوتے ہیں, میرا دل کر رہا ہے میں پہن رہی ہوں. کلرز ٹاک ٹو می, کلرز اٹریکٹ می. مجھے اگر ایک دن لگ رہا ہے کہ آج میں نے گرین پہننا ہے, آج میں نے یلو پہننا ہے, تو میں نے پہننا ہے. ہاں یہ ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ اپنے کلر کمپلیکشن کے حساب سے آپ کلر سلیکشن کریں. آپ کا اس کے لیے بہت ساری اپلیکیشنز اویلیبل ہیں, ایپس ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری سکن ٹون ہے, وارم ہے, کول ہے, انڈر ٹون کیا ہے اسکن کی, اس کے حساب سے کلر سلیکٹ کریں. ایز فار ایز یو لکنگ گڈ ان دا کلر, آئی ڈیم کیئر کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. ہمیں تو بہت کچھ سننا پڑتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر ریئلی. سبا جی میں تو بڑا سنتی ہوں بڈھی گھوڑی لال لگام. تو بڈھی گھوڑی تو سب کرتی ہے بھائی, لیکن پہلے میں لائٹ کلر بہت پہن لیا کرتی تھی. اب میں تھوڑا سا, مجھے ڈیپ کلر پسند ہے, لیکن کبھی کبھی جیسے یہ اب میں نے لائٹ پہنا ہوا ہے, میرا تو جو موڈ ہوتا ہے میں وہ پہنتی ہوں, اور مجھے جو اچھا لگتا ہے میں, اور ہر کلر پہنتی ہوں میں, اور میں تو انجوائے کرتی ہوں بھائی. اور میں بالکل بھی بڈھی گھوڑی لال لگام نہیں ہوں. میں جو مطلب لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہاں کہ لال کلر بھی, ارے بھائی کیوں لال پہنا ہوا ہے. اچھا کیا ایج کا ہم نے کیا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ایک فلانی ایج کے بعد جب کہتے ہیں ہلکے انسان رنگوں پہ آ جائے, کیونکہ ہمارے آگے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جی برائٹ کلر جو ہیں وہ آپ نہیں پہن سکتے. ٹیبو ہے, منع کر دیتے ہیں. میں ابھی اس وقت اپنی ریلیٹیو کا نام نہیں لوں گی, میں نے برتھ ڈے پہ ان کو گفٹ کیا تو کہنے لگی کہ ہاں یہ بہت برائٹ رنگ ہے نا, میرے سسرال والے اعتراض کریں گے. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ میں ایسے لا لیتی ہوں, میں آپ کو نیا جوڑا, پھر میں نے لائٹ کلر میں بھجوایا. یہ تو ہمارے جو ہمسایہ ملک کی ان کی ہیں یہ چیزیں کہ یہ سفید دوپٹے, بالکل جی ہمارے ملک میں بھی پورا یہ ہے کلچر. لڑکیوں کو سکھا دیا گیا ہے. میں نے تو 20 ایج گروپ میں دیکھا ہے لڑکیاں ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں 18 سال 16 سال کی, یہ کلرز پہننے, پیسٹل اچھے لگتے ہیں, نہیں لاؤڈ نہیں پہن سکتے, نہیں برائٹ کلرز نہیں پہن سکتے. میں نے تو عورتوں سے زیادہ لڑکیاں دیکھی ہیں اپنے خاندانوں میں, اور میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ ان کو ریسٹرکٹ کس نے کر دیا. بائی دا وے آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ آپ پہ کوئی کلر اچھا نہیں لگے گا. میں تو اس کانسیپٹ پہ بلیو نہیں کرتی. آپ کو ہر رنگ پہننا چاہیے, چاہے آپ کالے چاہے آپ گورے ہیں. کیسے ڈیسائیڈ کریں آپ کے موسم کے حساب سے بس پہنے. موسم obviously دیکھیں وہ تو آپ کا ایمبیانس, آپ کی سراؤنڈنگ ہوئی نا کہ آپ نے اس میں ایڈجسٹ ہونا, وہ ایک وہ سینس ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو ہر کلر ایکسپیرئنس کرنا چاہیے, تبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کلر کی, ہر کلر کی اپنی وائبریشن ہے. تو آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیسے کر رہے ہیں یار. اچھا آپ اپنی زندگی کے ساتھ جس بھی آپ کی جو کرنٹلی اس وقت جو ایج ہے نا, یہ آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت ایج ہے, کیونکہ اس وقت جو آپ کی مینٹل کنڈیشن ہے, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, وہ آپ کا اور کسی ایج میں نہیں تھا. تو میں اب اپنی یہ گیسٹ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی کون سی ایسی عادت, اگر یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز عادت نہیں ہونی چاہیے تھی, تو وہ آپ کی ویسی کون سی عادت ہے جو آپ نے ترک کر دی ہیں؟ میں بہت سینسٹیو تھی. میں اپنی فیملی کو لے کر, گھر کو لے کر بہت سینسٹیو تھی. مائنر سی اگر کوئی بات ہو جاتی تھی نا, وہ میں اگر اس وقت نہیں بھی کوئی جواب دیتی تھی تو دل کے اندر تکلیف رہتی تھی. یہ میں کنٹینیو کروں گی کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا چیزیں ترک کرنی ہیں, کیونکہ جو ہماری بہت سی عادتیں ہمیں بہت جلدی ہمیں ایج کروا دیتی. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے, بریک میں کی باتیں کر لی ہیں, کیا بات کر رہے کہ جیسے بہت چیزیں نا کہ جو چیزیں بادر کر رہی تھی, اپنی کون سی جو عادتیں ہیں پھر آپ نے ان کو چھوڑی. یہ سوال تھا میرا کہ ایسی کون سی عادت, پھر آپ نے بتایا تھا کہ آپ کسی چیز پہ ڈسٹرب ہوئی تھی گھر میں. ہاں مطلب ہر چیز کو نا دل میں اور دل پر جگہ نہ دیں, یہ میں نے سیکھا بہت عرصے بعد. اور جب میں نے وہ سیکھا تو میں نے وہ چیزیں بالکل چھوڑ دی. مجھے اس چیز نے سب سے زیادہ ڈسٹرب کیا تھا, اور اس چیز کو میں نے چھوڑا جو
जो आपको इतनी सी बात भी ना दिल को लग जाती है, वो मेरे ख्याल में सब। और इन सब के लिए ना बेहतरीन, हम जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे, जैसे मैं अगर फजर में उठ ना सकूं और मैं जब उठती हूँ तो फिर मेरा दिल घबराता है, मुझे सब बुरा लग रहा होता है कि एक कनेक्शन जो सुबह था ना वो मिस हो गया, तो वो चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो मैंने अब ज़िंदगी से वो जो डिस्टर्ब करती थी चीज़ें वो सब निकाल दी और मैं बड़ी रिलैक्स हो गई। और आपकी इर्द गिर्द की एनर्जी ऑफ कोर्स वो बहुत मैटर करती है कि आपके इर्द गिर्द की एनर्जी कैसी है। कभी कभी कहते हैं ना, आपके आसपास के जो लोग, आपके घर के सर्कमस्टांसेस, आपके ससुराल वाले, अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, आपको बहुत जल्दी बुरा कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हम वैसे कभी कभी ऐश्वर्या राय को देख हम कहते हैं यार दुनिया की सबसे ये कैसे Actually, मैं ये औरत सोचती हूँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। हमें लेकिन नहीं पता कि घर के माहौल क्या है। उसको इफेक्ट किया है तो फिर हम कौन है? हाँ, तो ये बड़ा तो नहीं, ये बातें सुन के उनके घर में लड़ाई ना शुरू हो। नहीं होनी चाहिए लड़ाई, जैसे भी करने लगे। हाँ, सच को फेस करना चाहिए। हाँ, वैसे ये बात जैसे है कि आपके घर के आसपास के लोग, अब फिर आपको बाउंड्री सेट करना भी अपने मेंटल पीस के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपने अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम कौन सी ऐसी आदत जो आपने तर्क कर दी? एक तो मैंने अपने आप को पनिश करना छोड़ा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप गलतियाँ होती हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, और फिर उसमें आप एक गिल्ट में चले जाते हैं कि ओह ये ऐसा क्यों हुआ, कितना बुरा मोमेंट था, मैंने क्यों किसी को ट्रस्ट किया, मैंने क्यों किसी के साथ इतनी जेनरोसिटी की, उसने तो यूं बदतमीज़ी की, फला फला। तो ये इस तरह करके ना आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा एक जंक जो है ना, एक कूड़ेदान बन जाता है जिसके अंदर वो सारा नेगेटिव लगेज जमा हुआ होता है। तो एक तो है कि कमिंग टू टर्म्स विद योर पास्ट, जो भी हुआ वो आपका लर्निंग प्रोसेस था, आपने उससे सीखा, अब उसको बंद करके साइड पे कर दे। ना कहीं कहीं खुद को माफ कर देना भी बहुत मैं ये अब इज कमिंग टू दिस कि अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी। फॉरगेट एंड फॉरगिव, बस दो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, और मैं अपने आप को कहती हूँ कि अच्छा किया बुरा, सेट असाइड। और अब नेचुरली मुझे पता है बहुत सारी बदतमीजियाँ और कोई बुरा बिहेव करता है, कुछ होता है, वो मेरे दिमाग से डिलीट हो जाता है। मुझे आई जस्ट माई ब्रेन रिटेन्स जो अच्छा एक्सपीरियंस है, और बुरे वाला ऑटोमेटिकली वो कहीं दब जाता है। यानी कि आपने अपने ब्रेन को जिस अपने तरीके से प्रोसेस करना सिखा दिया है। सीखा है। हाँ, कि बस नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब ही नहीं करना। अपने पास्ट के साथ, अपने माजी के साथ उसको एक्सेप्टेंस के साथ कबूल कर लें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को पनिश करते रहते हैं कि ये गलती मैंने की, उसके साथ मैंने ऐसा अच्छा क्यों किया, उसने तो मेरे साथ ये किया, तो तब तक आपके दिल में रंजिश और नेगेटिव इमोशंस उबलते रहते हैं, और वो आपको ना स्किन अच्छी होगी, ना बॉडी अच्छी होगी, आपके ऑरा में भी एक नेगेटिविटी ना वो चलती रहती है। तो जाने दें, वो टाइम था, वो एक ईरा था, गुजर गया, मूव ऑन। अच्छा, मुझे तो मेरा माजी याद भी नहीं रहता। मेरी बहनें बात कर रही होंगी, वो फलां थी ना फ्रेंड, वो मुझे मिली, और छोटी बहन के अभी वो शिफ्ट हुई तो उसकी पता नहीं 5-6 कॉलेज की फ्रेंड्स आई हुई थी खाना उसके घर। तो मुझे कहती बाजी आपकी भी फलां, मैं कहा मुझे नहीं याद। कितनी है जो मुझे फ़ोन करती हैं कि आपके साथ थी मैं, मजाल है मुझे कोई याद हो। मेरा दिमाग तो इतनी जल्दी डिलीट करता है चीज़ों को कि माजी तो मुझे, बच्चों की बचपन की चीज़ें मुझे इतनी याद नहीं है, यकीन जाने मुझे नहीं याद। मैं सिर्फ और सिर्फ ना ये जो टाइम है ना, इसमें जीना सीखना चाहती हूँ। मुझे कभी ये भी फिक्र नहीं हुई मुस्तकबिल की। वही बात मैंने एक आपसे कही है, उसी को मैंने अपना पल्ले बांध लिया है कि मेरे बच्चों, आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे होते हैं, उससे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। मेरे बच्चों को मैं सेहतमंद अच्छी लगूंगी, मेरे बच्चों पर अगर मैं फाइनेंशियली बोझ नहीं डालूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे ये चीज़ें मुस्तकबिल के लिए चाहिए। माजी मुझे याद ही नहीं है, और हाल में अपना जो है ना बेस्ट जीना चाहती हूँ और अपनी तरफ से जी रही हूँ, लेकिन बस मुझे अपने हाल से मतलब है, बाकी मुझे तभी और बातें याद ही नहीं होती। आप एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, आप नए इनिशिएटिव्स ले रही हैं। सो जैसे उन्होंने कहा ना कि ये सीख रही हैं, ये सर्टिफाइड जो है वो होम शेफ है, आपने अपनी नहीं भाई, मैंने सब सीखा और मैंने इतना किया है, मैंने इतने खाने बनाए हैं, मैंने इतने घर चेंज किए हैं, बनाए हैं,
अब मुझे वो सारी ख्वाहिशें जो है ना मैं कर चुकी, वो अब मेरी ख्वाहिश नहीं है, दिल होगा तो कर लूँगी, दिल नहीं होगा तो नहीं करूँगी। ये जो मोमेंट है ना, इस आज के दिन में ये मोमेंट, कल मुझे बैंक जाना था, पूरा दिन बैंक का टाइम था, सिर्फ मुझे कल के दिन में वो था कि बस मुझे बैंक जाना है और वो बड़ा अहम काम करना है। गोल सेट और गोल उसे सेट बहुत डिटेल में समझना है सब कुछ कि बैंक कैसे होगा सारा कुछ। शी इज अ वेरी गुड लर्नर। अच्छा, मैंने कहा लर्निंग के प्रोसेस जब तक आप लर्न मैं करें, आपको बताती हूँ, ये मेरे साथ थी। मैंने कहा ज़ेबा अब अकाउंट खुलवाना था, अब आजकल तो आप पैसे भी डालें फिर उसकी शराइत भी इतनी बैंक के लंबी बाहर लंबी। मुझे कहती है समझना सब कुछ, तो मैं कुछ नहीं समझूंगी। वो कहती है मैं अपने लिए मैंने तो अपना नहीं किया, तो मैं जा रही हूँ, मैं बैठी रहूंगी। मैंने कहा करना तो आपने ही है, क्रॉस अब आप ही तो आप ही समझेंगी, करेंगे, तो आप समझेंगी। समझेंगी, कुछ भी नया देख लें। सीखना और मुश्किल सब नहीं है। समझा, सब समझा, सब करवाया और रात तक करवाए। आजकल कुछ भी नया सीखना मुश्किल नहीं मुश्किल है, नहीं है। थैंक्स टू चैट जीपीटी। मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं पूछती हूँ, बिकॉज वो तो इतने नखरे से बताएंगे, ओ मामा यू डोंट इवन नो दैट। पहले अब बच्चे जज भी करते हैं। हाँ, बच्चे जज आई गो टू चैट जीपीटी, मैं उससे हर मसला, इवन अगर मैंने रख दिए क्रेम ब्रूले इन द अवन और फिर मुझे याद ओ इसको कितनी देर रखना था, तो बजाय इसके कि मैं डायरी में जाऊँ, फटाफट चैट जीपीटी से पूछिए हाउ लॉन्ग शुड इट बी, इट शुड स्टे इन द अवन, तो फौरन बता दे इतने मिनट। तो इतनी लाइफ इजी है। बहुत easy है ऑल वैसे लेडीज, हमारी। ऑल जेंटलमैन, मत आप सहारे ढूंढे, आपके पास इतनी सारी एप्स और इतना नॉलेज फ्री मिल रहा है आपको, तो बी कॉन्फिडेंट, अपना लर्निंग का सिलसिला जारी रखें और कोई नई ज़ुबान सीखे। बाय द वे मैं आजकल स्पेनिश पे काम कर रही हूँ, मेरी बेटी जर्मन सीख रही है और बड़ा मजा आता है। हम दोनों ड्यूलिंगो के ऊपर ना अपना Very अपना good. जर्नी जारी रखते हैं। मैं उसको जेम्स भेजती हूँ, मुझे मतलब सो एक लर्निंग प्रोसेस है। ये तो माय डॉटर बहुत इज माय अच्छा है। बिगेस्ट मोटिवेशन दिस वे। तो हम लोग एक, आप सिंधी तो आप खैर यहाँ पे जो अभी देखने वाले हैं, आप बलोची सीखें, पश्तो सीखें, कोई ज़बान। आई वैसे मैं किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज से पहले मैं सिंधी जरूर सीखना चाहूंगी आसपास, क्योंकि भाई हम रहते कराची में, बिकॉज आई वांट कि मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है अक्सर जगहों पे अगर आप सिंधी बोल रहे हैं आपका काम जल्दी हो जाता है, सो आई वुड वांट टू लर्न सिंधी। और एक्चुअली और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर एक पंजाबी बंदा जो है, क्योंकि इतनी मीठी लैंग्वेज है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर एक पंजाबी शख्स अगर सिंधी बोलेगा तो कितना खूबसूरत मैसेज आएगा अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने आई वुड लव टू। You're making me feel bad because मैं सिंधी हूँ और मुझे सिंधी सही से आती नहीं। My family would say कि तुम क्यों नहीं सीख रही हो? क्योंकि देखिए मेरी पंजाबी अब अच्छी हुई, हम हमारे घर में सबसे ज्यादा मेरी माँ बाप का फोकस है उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए। उर्दू तक मैंने पंजाबी कराची में आके बोलना शुरू की क्योंकि मैंने मिस की, बट नाउ आई वुड वांट टू लर्न सिंधी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये क्या कितना खूबसूरत मैसेज आएगा कि एक पंजाबी बंदा एक सिंधी बोल रहा है और आपको वैसे हाँ, that's true. हमारे Language मुल्क की सीखनी ज़बानें चाहिए। अच्छा, और दूसरी हाँ, ये आपके अपने मेंटल हेल्थ के लिए जो मैं बहुत देखती हूँ खवातीन में स्पेशली, कहीं भी जाएंगी किसी से भी मिलेंगी, ओहो ये तो बहुत कॉमन है ना, हाँ क्या हाल है, कितनी अच्छी लग रही, क्यों इतना वेट बढ़ा लिया है, यार, ठीक है? exactly. अल्लाह कितनी प्यारी लग रही, ये पिंपल क्यों नहीं, तुम्हारी कितनी प्यारी स्किन होती थी, ये अब क्या हो गया, अल्लाह यार तुम्हारे माथे पर लाइंस आ रही हैं, डॉक्टर के पास जाओ, इतना पैसा है तुम्हारे, मतलब उनका बात यहाँ से स्टार्ट होती है, यही चीजें होती हैं। उनको ना ऐसे प्यार से पकड़ के घर के दरवाजे तक लेके जा रहे थे कि अच्छा अल्लाह हाफिज। नहीं तो आप मार्केट में, आप मॉल में किसी से मिल लें तो आपका उनका सवाल ही ये होगा, शुरू यहाँ से होता है। फिर आप किसी के घर जा रहे हैं, आप गए हैं मेहमान बनकर, आप सोफे पर बैठे, यार अगर वो तुमने अगर वाज उधर रखा हो ना, वो देखो उसके साथ मैचिंग हो रही है, और अच्छा शेंटर बहुत प्यारा, कहाँ से लिया है, अगर तुम ड्राइंग रूम वाला इधर लगाओ और ये वाला उधर लगाओ तो कितना बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं स्पेशल लोगों को मैसेज देना चाहूंगी Yes. कि इस चीज को छोड़ दें। मैं आपको हर बताऊं? किसी ने अपने हिसाब से, मैं अपनी बेटी के घर जाती हूँ, कहती अम्मा आपने कभी मशवरा नहीं दिया, मैंने कहा तुमने अपने हिसाब से बेस्ट घर बनाया हुआ है, मैं तुम्हें कभी मशवरा, मैं कहीं चली जाऊं, मैं कहती हूँ गंद हो, सफाई हो, मुझे जो टाइम उधर बैठना है
मैं वो बैठकर, मैं कभी किसी मैं को वैसे नहीं मैं करती इंशाल्लाह इसी criticize। वीक और नेक्स्ट वीक हमने एक शो भी आपके लिए कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि जब आप किसी के घर मेहमान बन के जाएं तो आपके आदाब क्या क्या होने होने चाहिए, चाहिए। ये हम आगे इस शो भी कर रहे हैं तो आप वो मिस ना कीजिएगा। और इसमें जो Etiquettes डिस्कशन है नहीं, we don't have क्योंकि basic ये- etiquettes। अच्छा खुद भी जो बुला रहे हैं और इसमें ये कम्युनिकेशन में पहले आ जाता है बहुत कि जरूरी। आपको किसी से कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी। अगर आपके घर के Yes। मेहमान आए हो, हर बंदे की अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, Yes। ठीक है। और जिन लीडरों के लिए आप अपने रिश्तेदार छोड़ देते हैं, कल आपको अगर कुछ हो भी जाए वो लीडर कभी आएंगे भी नहीं। तो अपने रिश्तेदार जो है ना, मेरी उनसे- एक खाला, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत में जगह इलाही दे, वो आमीन। आती थी घर, वो कहीं भी जाती, वो बड़ी नफीस खातून थी, नफीस। ये गुल अहमद के सूट के अलावा उन्होंने कुछ नहीं पहनना होता था। फिर उन अब डिनर हो रहा है, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं घर पर, अब वो आए में हैं और रोटियां तनूर में लगा के दे रहे हैं, नान लग रहे हैं, सब कुछ। ये तो मैं नहीं खाऊंगी, घर की रोटी चाहिए। उनके लिए घर की रोटी, घर वाले कितने बिजी हैं, उन्होंने किचन में जाके उनके लिए रोटी अगर नहीं तो फिर दूसरे दिन वो कहेंगी मेरा ये खाया, मेरा ये हो गया, ये हो गया, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, रोटी नहीं थी। तो ये चीजें लोग बहुत करते हैं। अच्छा मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने घर से ले जाते हैं कि भाई क्योंकि ये चीज नहीं, हमारा बच्चा ये चीज स्पेसिफिकली खाता है, हम घर से ले आए हैं। बच्चे हम नहीं रोटी ना, घर से- बड़ों की बाहर लेकर बड़े भी मैंने सब आप उनको देखे वो अपनी रोटी ले जाते हैं कि भाई हमें फलानी हमारी रोटी थोड़ी घी में बनी हुई होती है तो जैसे हम ले अब आए मैं हैं। तो ले जाऊं वो वाली रोटी, 3 आटों की रोटी। दावतों की बात कर रही हैं। मेरे ससुर का इंतकाल हुआ था और उस वक्त खाना जब शाम में सर्व हो रहा था तो एक खातून के लिए चावल नहीं है। वाओ, मुझे तो इन घरों में खाना सर्व करना ही कैसे कह सकते अच्छा हैं आप ये? एक्चुअली नहीं, देखें होता है मैयत वाले घर में खाना उन लोगों के लिए होता है जो शहर से बाहर से आते हैं और उधर रुके में हैं। और अगले में इतनी ऑडेसिटी तो होनी चाहिए कि ये अगले से चावल ना देखिए, पूछे। मैं कहती हूँ आपके नेक्स्ट डोर नेबर आए हुए हैं ना, वो भी बैठ जाएंगे खाने के लिए। तो ये रिवायत बहुत गलत है, बहुत बुरा लगता है मुझे तो। चलिए मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे बताएं आप गुर बताएं, सदा जवान रहने का आपके नजदीक गुर क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग और कहीं ना रुकें, रुकना मना है, ये एक टैगलाइन होनी चाहिए आपके सिस्टम में। और सिर्फ पॉजिटिव चूज करना है, नेगेटिव को देखना ही नहीं। देखें, अल्लाह ने पॉजिटिव बनाया है, नेगेटिव हम खुद अपने अंदर क्रिएट करते हैं। अगर उस क्रिएशन को हम रोक दें बनाना, तो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है दुनिया में। क्योंकि अक्सर लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं लिटरली उनकी शक्ल पे आ जाता है। शक्ल बिल्कुल बन आता जाती है। है। आपके ऑरा में आता है, आपकी शक्ल में आता है, आपकी बातों में आता है, आपके फेस पे आता है, इट्स एवरीवेयर। आप बताएं आप क्या गुर देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं कहूँगी कि इन वन वर्ड अपने से प्यार करना सीखें। वैसे आपने अपने से प्यार करना कब सीखा? जैसे मैंने पूछी थी कि जब बच्चे, आपने अपने आप से प्यार करना कब सीखा? मैं बचपन से अपने आप से प्यार करती थी क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना प्यार मिला बचपन में कि वहाँ से ऑनवर्ड्स मुझे लगता था कि मैं किसी पर्पस के लिए इस दुनिया में आई हूँ। और जापानीज में तो एक प्रॉपर टॉपिक होता है इकिगाई, मेरे पास बुक है। पर्पस ऑफ योर कमिंग टू द वर्ल्ड। तो खैर अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को टाइम दें, एक थोड़ा सा अकेले टाइम, मी टाइम जो होता है, मुझे लगता है नमाज पढ़ते हुए बहुत अच्छा मी टाइम होता है कि जब अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं, आप अकेले होते हैं और नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। सो दैट्स लाइक दैट रियली कंट्रीब्यूट्स। और जैसे मैंने पहले कहा था, फॉरगेट, फॉरगिव, नेगेटिव लगेज को पीछे छोड़ें, आगे का देखें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की ब्लेसिंग समझ के गुजारें। उम्र जो है अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, एक बोझ नहीं है। हाँ बिल्कुल। और मैं अपने आप को भी प्यार करना शुरू करूंगी। अब मैं सोच रही हूँ मुझे फाइनली अपने आप को प्यार करना चाहिए। तो आप मेरे शो का, आपने मेरे शो का इंतजार किया कि मदिया के शो में जाके डिस्कस अब करोगे। मैं आज डिसाइड करी हूँ कि अब मैं आज के बाद से अपने आप से अच्छा, ये डिसाइड करने कौन है? आज ये डिसाइड करने तो होता है कि अच्छा 5:05 अपने आप से प्यार। मदिया, मैं सरकास्टिकली बोल रही हूँ बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं ना, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि तू सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। हाँ, ये बहुत करती है खुद से प्यार। चलिए तो अच्छी बात है। तो मैं इसलिए वो सरकास्टिकली बोल रही हूँ कि अब मैं अपने आप से वाकई प्यार करूंगी। अच्छा, ये तो हम लोग जो बेचारे नहीं जानते थे, हमें क्या पता था कि हमें तो लगा कि यार ये भी मासूम हमारी बहन, इनको भी सेल्फ लव की भी तक, क्योंकि हम भी लिटरली अभी तो उसमें ही है कि जी सेल्फ लव आना कैसे है। मुझे कभी कभी लगता है हमारे अम्मा अब्बा का बड़ा इसमें कसूर है कि उन्होंने इतना सेल्फ लव हमें, क्योंकि उनमें भी नहीं था ना। बस क्विकली आपसे भी आखिरी गुर सीखना। आप अगर कुछ चेंज चाह रहे हैं ना
اپنی زندگی میں تو خود کو چینج کریں, خود کو مولڈ کریں. دنیا پوری آپ کے لیے چینج نہیں ہوگی. آپ نے دنیا کو چینج کرنے کے لیے خود کو خراب نہیں کرنا. وہ ہے نا, کیچڑ سے خود بچ کر نکلنا ہے, ورنہ کیچڑ کو تو بڑا گھمنڈ ہے کہ مجھ سے ڈرتے ہیں لوگ. یس, کیا پیاری بات ہے. اسی بات پہ جناب تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جب بھی آتی ہیں خواتین میں ان سے بہت سیکھتی ہوں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.